and whose PhD in polarization, that is the BJP. So you should not say that we polarize. Yes, we talk about the minorities, we talk about the Muslims, and see what is happening in the country, Madhav. Since the last 10 years, what we have been seeing is only polarization by the BJP. The BJP is totally lost on its priorities. There is no word for development, there is no word for employment, there is only one word, hatred towards the Muslims, spread hatred, do polarize, take over to votes, and enjoy the seat. If you look in the present politics, it's a food for thought all the Indians. That for Aurangzeb, cutting across the party line, all the Muslim leaders were standing. I'm not saying the Muslim society, but all Muslim leaders standing. Whether it is a Congress, Communist, Samajwadi Party, or his party MIM, Muhafiz-e Majlis, Muhtarme Ittihadul Muslimin, Siyasat-e Secular Siyasat. He is having double M in that. But for Hindus, cutting across the party line, Hindu leaders were not standing for their Bhagwan. Now it has to point to think about it. For a tyrant ruler cutting across the party line, the Muslim leaders are standing, and for our God cutting across the party line, the Hindu leaders were not there. The Waqf land is our own land. It belongs to our orphans and to our poor people. This was donated to us as a private property, but the BJP wants to usurp that. And why? Just to see to it that our other people are happy. To polarize the situation. They are making the amendments to the Waqf. So this is okay. Polarization. Why to create hatred? When we live in democracy, when there is a law, there is an amendment to it, there is no need for getting this law. Let's get in Sudhanshuji on this. It's not us. Let me complete in 10 seconds. Yeah. Okay, complete your point. 10 seconds, complete. मैं सुधांशु जी आपसे ही पूछूंगा वफ का जो कानून लाने की जरूरत क्या थी, बताइए आप मेरे को। आपको तो पता है खुद को कि समझो 9 लाख एकड़ है या 9.5 लाख 10 लाख जो भी है, हमारी जमीन है। आप ये अमेंडमेंट ला के हमको पता है कि बीजेपी की नीयत में ही खोट है। नीयत उनकी है कि हमारी जो वफ की जमीन है इसको यूसर्फ कर दे। अभी आपके पास हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है, बताइए आप मुझे वहां पे आप किसी मुसलमान को एंट्री देंगे? आप नहीं देंगे। तो हमारे वफ बोर्ड के अंदर आप नॉन मुस्लिम को एंट्री देके क्या बताना चाहते हैं? It's not the issue. If it is been your land, it could have been a logical. But आपकी जमीन पे कोई क्लेम कर दे, आप जमीन ऐसे ही दे देते हैं, कोर्ट में जाते हैं ना। 120 प्रॉपर्टीज दिल्ली की क्लेम की वक्फ बोर्ड ने, 2014 में जाते आते कांग्रेस ने सब दे दी, गवर्नमेंट ने। Can government claim a single instance in which the government has given away the property without contesting in the court? That's why we are saying it's not the property of any person or community, it is the properties of the government which is being claimed. It's a very peculiar logic. At the 1947 there were 30,000 acre land with Waqf board, now it is 9,60,000. ये कहते हैं हमने दी। साहब वो सोसाइटी इतनी प्रॉस्पेरस है कि 9,30,000 एकड़ तो दान दे दी है, और फिर कहते हैं साहब हम तो इतने गरीब और मजलूम हैं कि हमें रिजर्वेशन चाहिए। Such a dialectic logic, have you ever heard? Nobody can believe this. तो इसलिए मैं सिर्फ कहूंगा, ये जस्ट वन लाइन, मरीजे सेकुलर सियासत पे लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। इस सेकुलर मर्ज ने ही इस देश को ज्यादा प्रॉब्लम। All right. औरंगजेब का नाम लिए बिना आप लोग सियासत नहीं कर सकते। 300 साल बाद भी आज औरंगजेब आपकी मदद के लिए आ गया। अरे भारत के मुसलमान को क्या लेना देना औरंगजेब के साथ में, बताइए। वो चले गए। अब 1788 के अंदर 1788 में औरंगजेब का डेथ हुआ। 111 साल उसके बाद तक मराठाओं ने रूल किया। आपने जब कबर नहीं खोदी उसकी, वो मराठाओं ने कबर नहीं खोदी 111 साल। अब आपको क्यों खोदना है कबर? चलिए कबर खोदने चलते हैं। अगर कबर खोद के ले जाने से देश का विकास होता है, मैं आपके साथ चलता हूं, कुल्हाड़ी लेके हम दोनों जाके मिलके खोद के आएंगे। अगर कबर खोदने से मेरे युवाओं को रोजगार मिलता है, चलिए अपन कबर खोदते हैं। अगर कबर खोदने से ट्रिलियन इकोनॉमिक बन जाती है अपनी, चलिए कबर जाके खोद के आते हैं। अगर कबर खोदने से 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में जमा हो जाता है, मैं आपके साथ चलता हूं सुधांशु जी, अपन कबर खोद के लेके जाएंगे। अरे कबर खोदने से कुछ फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ आपके सेटिस्फेक्शन ही को। आपने बता दिया, देखिए हम हिंदुत्व के चैंपियंस, हमने क्या करके दिखा दिया, जबकि ये है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। आई विल टेक आउट द मास्क फ्रॉम हिज फेस। इन्होंने क्या कहा कि मुस्लिमों का औरंगजेब से क्या मतलब है? इन्हीं के नेता गुरुद्दीन ओवैसी बोले थे ना, हमने 800 साल इस मुल्क पे हुकूमत की। ये हम कौन थे और 800 साल हुकूमत करने वाले कौन थे? अभी इनके मुंह से निकला, इनके नेताओं ने बोला था
आगरे का ताजमहल तुम्हारे बाप ने बनवाया, लाल किला तुम्हारे बाप ने बनवाया। अरे भाई ये बाप कौन बना रहा है? आप बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे हैं। और अभी राणा सांगा वाले स्टेटमेंट में याद करिए, रामलीला सुमन का स्टेटमेंट क्या है? कोट अनकोट, मुसलमान बाबर की औलाद हैं, तुम राणा सांगा की औलाद हो। अखिलेश जी ने भी अपोज नहीं किया ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ रामजीलाल सुमन। न ये बोल रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट इज एक्सेप्टेड। आप बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। आप अब रही समाजवादी बात पार्टी को इसकी। सवाल सर, करो कि अब उनका पूरी क्या बात। रंगा सर, मामला है। हम तो सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि वायलेंस नहीं होना वारिस चाहिए, पठान, वारिस पठान, तोड़बाजी नहीं होना चाहिए। He बस didn't हमको interrupt इसकी you. बात Let's करनी अरे भाई, मैंने तो आपको He didn't कोट किया। अब दूसरी बात इन्होंने कहा उखाड़ने की क्या जरूरत है? हम भी मानते हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं, जब ये देश आजाद हुआ, हर बड़े शहर के हर बड़े बड़े चौराहों पे किंग जॉर्ज, क्वीन विक्टोरिया, फलाने फलाने वॉइस रॉय मूर्तियां लगी थी कि नहीं? उखाड़ी गई थी कि नहीं? क्यों उखाड़ी थी कांग्रेस ने? ये गुलामी के प्रतीक हैं। ये खड़े होकर भारत की को सम्मान नहीं देंगे। How did the Nagpur started? You have to go to the root cause of it. Since several days we have been telling the Maharashtra government, the Chief Minister of Maharashtra, Fadnavis, they said that you have let loose some of your people who are just going ahead every day and using such kind of unparliamentary language against the particular community. आपने अपने नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया है जो हर आए दिन आकर मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करते हैं। उनके ऊपर लगाम लगाइए, उनको रोकिए। जैसे कि नीतीश राणे ने आके कहा कि मस्जिद में घुस के चून चून के मारेंगे, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। उस पर FIR आपने उसको अरेस्ट नहीं किया। नरसिंह रामगिरी, उसने आके हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हमने उस वक्त भी कहा कि हम FIR है उसके ऊपर, उसको अरेस्ट करिए। मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने नहीं किया। आए दिन ये जो नागपुर का इंसिडेंस हुआ, उसके 3 दिन पहले हैदराबाद से आया हुआ तेलंगाना से बीजेपी का MLA पूना में था। पूना में उसने भड़काऊ भाषण दिया। उसके बाद में देखिए नागपुर जल गया। तो आपके लोगों के बयानबाजी की वजह से, हेट स्पीचेस की वजह से ये हुआ। और वहां भी क्या हुआ? आप जो बोल रहे हो ना माधव कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, देयर आर विजुअल्स। हम तो घर में बैठ के नहीं बनाते, वीडियो है, विजुअल्स है जो सब दर्शाता है कि नागपुर क्यों हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने फ्लोर ऑफ द असेंबली में खड़े होकर कहा कि नागपुर हिंसा की मेन वजह थी छावा फिल्म। छावा फिल्म की वजह से काफी औरंगजेब के खिलाफ और नफरत पैदा होने लग गई। आपने वहां आया, लोगों ने देखा कि कोई चादर पे लिखा हुआ था, क्या था? मैं तो नहीं बना रहा था वहां पर, मगर उसकी वजह से भड़का। और होता क्या है बाद में, आप देखिए, आप बोलोगे वारिस पठान का गला भी दबा और मेरी आंख भी बाहर नहीं आए, ऐसा हो रहा है। आपने एक FIR रजिस्टर किया जिसमें से 7 से 8 बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोगों को अरेस्ट किया। उनको कोर्ट में आप ले गए, 5 मिनट में 3-3 हजार रुपए की बेल पे सब बाहर आ गए। वहीं पर 52 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर FIR हुआ है जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, आज भी वो जेलों के अंदर है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है नवंबर के अंदर स्ट्रिक्ट तौर। ही इज सेइंग दैट द रिएक्शन फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी वाज स्पॉन्टेनियस। तो ये छत पे पत्थर कहां से आ गए? वो स्पॉन्टेनियस आ गए, मतलब वो कोई आसमान से यूं किया स्पॉन्टेनियस और आ गया। साहब, दिस इज द प्रूफ। अदरवाइज मैं पूछना चाहता हूं, हाउ कम द ब्रिक्स कम ऑन द रूफ्स ऑफ द हाउसेज? दैट शोज that this is an alibi that it is spontaneous. It is been well mastermind and planned that the things are coming in the investigation. Now coming to the provocative speech. Sir, if party like them are giving, it's like the devil is giving a sermon. 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सब देख लेंगे। ये सेकुलर सॉन्ग था, ये थोड़ी हेट स्पीच थोड़ी थी। 20 करोड़ 50-100 करोड़ पे भारी पड़ेगा, सेकुलरिज्म का सॉन्ग है, इसको कैसे हेट स्पीच कर सकते हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने बोला था, जब मोदी पहाड़ पर चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे, तुम्हें बचाने कौन आएगा? ये सब तो सेकुलरिज्म के सॉन्ग होते हैं, इनको हेट स्पीच थोड़ी कहते हैं। Akshay Khanna, we met, it was nice in talking and we just spoke about certain topics and I said, sir, आपने तो छावा फिल्म कर ली, आपको तो कुछ नहीं होगा क्योंकि आप तो अक्षय खन्ना हो, विनोद खन्ना के बेटे हो। लेकिन यकीन मानो अक्षय, अगर आपकी जगह पर कोई और मुस्लिम ने ये रोल कर दिया होता, आपकी जगह कोई भी मुस्लिम एक्टर होता जिसने रोल किया होता, तो अब से क्या हो जाता उसके साथ। अरे आप तो उसको औरंगजेब समझिए, उसका मॉब लिंचिंग। बट ऐसे कैसे कह सकते हैं? शाहरुख खान है, आमिर खान है, क्या मॉब लिंचिंग याद आता है आपको? ट्रेन में आपको दाढ़ी टोपी वाला दिखा नहीं, मॉब लिंचिंग। रस्ते पे आपको दिखा मुसलमान, इसने कुछ भी बोला, मॉब लिंचिंग। गाय की तस्करी के नाम पे झूठी पे बुनियाद, मॉब लिंचिंग। फिल्मों में एजेंडा क्या चलता था?
ये कह रहे हैं चलो एट्रोसिटीज वाली फिल्म अलग, मैं मोहब्बत की फिल्मों की बात कर रहा हूं। फ्रॉम दी एज जनरेशन ऑफ अवर ग्रैंड पेरेंट्स टू प्रेजेंट जो फिल्में बनी हैं मोहब्बत की, उसमें क्या है? सलीम अनारकली, जोधा अकबर, शाहजहां नूरजहां, यही सब है ना। लैला मजनू। आई चैलेंज कि एक मुगल बादशाह बताइए जिसकी एक बीबी रही हो। दर्जन दर्जन भर ऑफिशियल बीबियां, हरम में 2-2, 300 औरतें और एक स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम के प्रतीक सिर्फ मुगल नजर आए। ये है एजेंडा, ये है एजेंडा। वो अकबर, इसलिए मैं बताना चाहता हूं आपका नफरत में भी एजेंडा है और मोहब्बत में भी एजेंडा है। एक एजेंडा है मोहब्बत, फैक्ट से एकदम। हम सिर्फ मोहब्बत फैलाने में मानते हो और आप सिर्फ नफरत फैलाने में मानते हो। आप मुझे बताओ 10 साल में आपने मोहब्बत फैलाई है नफरत? 10 साल में क्या फैलाया मोदी ने? सिर्फ नफरत नफरत नफरत। जवाब नफरत के सिवा कुछ नहीं फैलाया। एक मुगल बादशाह बताओ जिसकी एक बीबी रही हो, हरम में कोई औरत न रही हो। मगर सारा सलीम अनारकली, जोधा अकबर, शाहजहां नूरजहां, यही है एजेंडा दिमाग में बनाया गया है। और आज भी ये 4 बीवी के साथ है, ये 4 बीवी के साथ है और एक स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम की प्रतीक की शेरो शायरी इनकी एक एक्सक्लूसिव कॉपीराइट है। समझिए एजेंडा, समझिए एजेंडा आप अच्छी तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया नवंबर के अंदर, स्ट्रिक्ट तौर से बुलडोजर के ऊपर कहा था कि अगर यदि एक एक्यूज आपको लगता भी है आदमी के ऊपर कोई क्राइम किया है इसने है, तभी भी आप उसका घर को बुलडोजर से नहीं उड़ा सकते, क्योंकि आप बुलडोजर से एक आदमी का घर नहीं उड़ाते, उसके पूरे परिवार को आप नुकसान देते हो। ये सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है, अगेंस्ट द लॉ है। फिर भी उत्तर प्रदेश में तो हो ही रहा था, महाराष्ट्र के अंदर जाके आपने वो फहीम का घर को बुलडोजर से उड़ा दिया। ये तो बाद में महाराष्ट्र के अंदर कोर्ट ने रोका आपको, यदि नहीं तो आप तो संविधान की भी धज्जियां उड़ा रहे हो, कायदे कानून की भी धज्जियां उड़ा रहे हो। लॉ का प्रोसेस होता है। सुनिए माधव, अगर आपको लगता है कि इलीगल स्ट्रक्चर है तो उसमें कानून है, उसके अंदर आप उसको नोटिस दो, नोटिस का वो रिप्लाई देगा। उसके बाद अगर कोर्ट बोलेगी ये कि इलीगल स्ट्रक्चर है, आप जाके तोड़ दो, इलीगल अतिक्रमण है आप तोड़ दो। बट हु हैज गिवन यू द पावर्स टू गो देयर विद द बुलडोजर एंड बुलडोज समबडीज फैमिली? यूपी में जितने बुलडोजर एक्शन हुए, एक डिमोलिशन को कोर्ट से गलत सिद्ध कर पाए? नहीं। ऑल वर इलीगल कंस्ट्रक्शंस, ड्यूली नोटिसेस वर सर्व्ड। अब आप ये कह रहे हैं कि साहब एक गलती की वजह से दूसरा पूरी बात एक दिखाइए ना, जहां कोर्ट ने कहा डिमोलिशन गलत है। एक व्यक्ति का घर तोड़ दिया, इसके नाम पे घर ही नहीं था, वो घर उसकी बेटी के नाम पे था, आपने जाके उसका घर तोड़ दिया। ये भी रीजन जो ये लॉजिक दिया जाता है कि एक अपराध के लिए दूसरी सजा कैसे दी जा सकती है। मैं आप सबसे कह रहा हूं, आप कार चलाते हुए जा रहे हो या बाइक चलाते हुए, ओवर स्पीडिंग हो, पुलिस वाला रोके, फिर वो कहे गाड़ी कागजात दिखाओ। अगर कागजात नहीं है, डीएल नहीं, तो आप ये थोड़ी कह सकते नहीं सिर्फ ओवर स्पीडिंग का चार्ज करिए, कागजात नहीं है तो कहे गाड़ी जमा हो जाएगी। कागजात नहीं है, रजिस्ट्रेशन इज नॉट देयर, then your vehicle is seized. You cannot say it is just the case of over speeding. So when a crime is committed, the entire background of the criminal is scanned, and wherever it is found, it is given. That's why they haven't got a single cancellation from court. This is again, and camouflage has been set. Try to put up the things in a different perspective.